Hello learners, welcome to MDC Learning, Standard TY subject Cost Accounting, and our today's topic is Standard Costing. Students, different costing techniques have been developed for the different purposes. Now, this technique of standard costing have been developed to help the management in cost control, है ना. किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ टेक्निक, दैट इज standard costing techniques. Now, actual cost of production can be controlled if the management is aware, that is what the cost, like कितना खर्चा हो रहा है, like starting the production, this technique like cost can be controlled if management know like what is cost. यानी cost like production start करने के पहले, ठीक है, प्रोडक्शन स्टार्ट करने के पहले इफ यू आर नोइंग द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है, इफ द मैनेजमेंट इज नोइंग द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, द कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड इनफ. ठीक है, जितना भी खर्चा है ना, टोटल जो खर्चा है ना, उसको आप कम कर सकते हो अगर आपको पहले से ही पता हो, पहले से ही आप उसकी प्लानिंग और बजटिंग करके रखो. ठीक है, like in a standard costing, the first standard cost are set up for the each product, that is actual cost is compared with the standard cost, and finally the difference means the variances. ठीक है, difference के लिए एक नया शब्द यहाँ पे use हो रहा है called variance between standard and actual cost is analyzed, and this will help in controlling the cost and as and when they are actually incurred. ठीक है, basically, standard costing is a cost accounting method that determines the expected cost for each product as a part of production plan or budgeting. It includes the direct material, direct labor, and manufacturing overhead cost. It also called as predetermined cost or the estimated cost or expected cost, or you can say this is also be a budgeted cost. जैसा मैंने आपको बोला कि यानी पहले से ही हम फिक्स कर सकते हैं कि हमको कितना खर्चा होगा. ठीक है, इन रिलेशन टू मटेरियल, मटेरियल के लिए भी कैलकुलेट हो सकता है, लेबर के लिए भी कैलकुलेट हो सकता है, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कैलकुलेट हो सकता है. इसको हम लोग बोलते हैं प्री डिटरमाइंड कॉस्ट और द एस्टिमेटेड कॉस्ट और एक्सपेक्टेड कॉस्ट और बजटेड कॉस्ट. यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल दीज वर्ड्स बिकॉज दिस कुड बी आस्क्ड फॉर द फिलिंग द ब्लैंक्स, लाइक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ये आ सकता है. द कंपनी यूजुअली कंडक्ट अ टेस्टिंग a proper standard cost of each production per unit. With this cost, they will be able to calculate the inventory valuation, cost of goods, which will impact the profit during the period. More important, it helps the management to set a proper price and complete in market. ठीक है, लाइक यहाँ पे एक बराबर से प्राइस आप रख पाओगे अपने प्रोडक्ट की. अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की हेल्प से आपके प्राइस का प्रोडक्ट फिक्स करते हो तो यू कैन ऑल्सो कम्पीट इन योर मार्केट. ठीक है, लाइक मार्केट में जो भी कंपटीशन है उसमें आप आगे आ सकते हो. Now, here are some characteristics of standard costing. Students, I'm teaching you these characteristics because of the short notes. Like many times, the short notes will be asked in your examination for 5 marks. So, if you are knowing all these things, you can write that short notes. It is usually having the following features, that is, it is predetermined in the planning stage, which means that the company is prepared this cost based design and product feature even before the actual production. Actually, if you are not like producing you are producing the goods, but you can make your standard for production before your actual production. Now, this method is help the management for selling the price calculation. In the business operations, we need to send a quotation which includes our selling price a customer in advance. We cannot weigh the actual cost, which may differ due to the various reasons. It will be too late to inform to our customer. Therefore, the standard costing is the best tool to for us to set the selling price, है ना. किसी भी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस अगर एडवांस में बताना है आपको आपके कस्टमर को, ठीक है, कि कितने में टोटल पड़ेगा,
है ना। तो वो आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की हेल्प से बता सकते हो स्टूडेंट्स। अगर आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आती है तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की हेल्प से आप बता सकते हो, है ना। एक्चुअली बिना प्रोडक्शन किए ही आप उनको पहले ही कैलकुलेट करके बता दोगे कि भाई एक प्रोडक्ट इतने में पड़ेगा, ठीक है, आपको पर यूनिट इतने में पड़ेगा। आप अगर करवाना है तो ले लो, लाइक एक एग्जाम्पल आपको प्रिंटिंग का ले लो, ठीक है। जैसे प्रिंटिंग होता है तो प्रिंटिंग में अगर आप कोई एक पैम्पलेट प्रिंट करवाना चाहते हो तो उनका मिनिमम ही शुरू होता है कि बाबा 100 पैम्पलेट तो आपको लेने ही लेने हैं, या 1000 पैम्पलेट तो आपको लेने ही लेने हैं, ठीक है। अगर आप उससे कम करोगे तो आपका कॉस्ट ज्यादा आएगा, और अगर उतना ही लोगे तो ये कॉस्ट मेंटेन रहेगा, ठीक है। सो ये एक चीज होती है। उसके अलावा इट विल बी अ टूल टू एक्सेस द मैनेजमेंट परफॉर्मेंस, द वेरिएंसेस बिटवीन एक्चुअल एंड एस्टिमेट, ठीक है, बीच में मैनेजमेंट परफॉर्म होता है। इट कैन शो हाउ the goods are performing. However, the setting standard cost must be involved from the various parts in order to ensure the transparency. We have to ensure that it is not overestimated, as will not force the production team to save. On the other hand, setting too low cost will put too much pressure on them to achieve the result, which will never happen. At the end, they just let it go. वो सिर्फ इसे ऐसे ही लाइक जाने दे देते हैं, ठीक है। उसके अलावा द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड, and it will use as the basis of future standard cost in the daily operation. There will be a change in our costing, so it must reflect those changes from time to time. Time to time ये changes show होते रहते हैं. In short, the standard defined as a predetermined measurable quantity set in defined condition against which actual performance can be compared, usually for element of work, operation, or activity. Like preparation and use of standard costing is a comparison with the actual cost analysis of variances to the cause of point includes. like यहाँ पे अपने पास पहले से ही हम एक प्रिपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड, और वो स्टैंडर्ड पे हम एक्चुअल प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। उसको ही हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। नाउ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज प्रिपेयर विद द थ्री थिंग्स। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का फॉर्मूला तीन चीजों से प्रिपेयर हो जाता है। एक आपका डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंसेस एनालिसिस फार्मूला। नाउ आपको मैं अभी स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंसेस के डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज है वो पढ़ाने वाली हूँ। एक बार जब आप ये फार्मूलाज के साथ डील कर लोगे ना बच्चों, तो आपको बाकी सारी चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी, ठीक है। This is allocation of variances formulas equation which help you to calculate the variances for direct material, direct labor and factory overheads. Direct material, direct labor and factory overheads. ये तीन चीजों के साथ हमको calculation in your syllabus of TYBCom students, they deal only with the two things, like they deal only with the material and direct labor. फैक्ट्री ओवरहेड के वेरिएंसेस आपको कैलकुलेट अभी नहीं करना है। क्यों अभी नहीं करना है? क्योंकि अभी आपको ये सिलेबस में नहीं है। तो हमको डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस के सारे फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, उसके अलावा डायरेक्ट लेबर वेरिएंसेस के सारे फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी स्मॉल चैप्टर, ठीक है। तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऊपर थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी रखनी है, जो ऊपर मैंने आपको बताया, दैट इज फीचर्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक्चुअली में क्या है, ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन, इट्स अ टेक्निक बिटवीन the management, like it's a technique between to set the measurable quantity, like defined quantity against the actual performance and standard performance, ठीक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं स्टूडेंट। वंस यू आर नोइंग द फॉर्मूला, अगर आप एक बार फॉर्मूला याद रखते हो तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। लेट्स स्टार्ट विथ डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस। मटेरियल वेरिएंसेस कैलकुलेट करने के लिए द फर्स्ट वेरिएंस इज मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस फॉर्मूला। उसके अलावा फिर मटेरियल प्राइस यूसेज वेरिएंस फॉर्मूला, देन वी हैव मटेरियल क्वांटिटी और यूसेज वेरिएंस फॉर्मूला। आफ्टर दैट वी हैव मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस फॉर्मूला,
ठीक है, यानी ये 4 फॉर्मूला के साथ आपको डील करना है। और लास्ट 5वां वाला है मटेरियल यील्ड वेरिएंसेस फॉर्मूला। ठीक है, एक्चुअली आपने कितना आउटपुट दिया उसके हिसाब से वो फॉर्मूला लगाना है। Now let us see the first one, material purchase price variances formula. ठीक है, price variances formula के लिए material purchase price is equal to actual quantity purchased multiply by actual price minus actual quantity purchased multiply by standard price. Now you can see in this formula बच्चों quantity purchase दोनों में है। Let us move to the next one. सी आज के वीडियो में सिर्फ आपको सारे फॉर्मूलाज बताऊंगी सो दैट आप अगले वाले वीडियो में ये फॉर्मूलाज याद रखोगे और फिर अगला वाला वीडियो देखोगे तो क्या होगा मालूम है, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना वो आप फटाफट सॉल्व कर पाओगे। सो लेट अस मूव फर्दर। मटेरियल प्राइस वेरिएंस मटेरियल प्राइस यूसेज वेरिएंस फॉर्मूला। नाउ यूसेज यानी इस्तेमाल कितना करते हो। ठीक है, मटेरियल का इस्तेमाल कितना करते हो। पहले वाले में हमने प्राइस के साथ किया, ठीक है, कि एक्चुअली कितने में हम खरीद के लाते हैं और कितने में हम पहले लाते थे। ठीक है, ये वो था। अभी यूसेज के हिसाब से मटेरियल प्राइस यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू actual quantity used multiply by actual price minus actual quantity used multiply by standard price. Okay students, ध्यान दो यहाँ पे, actual quantity used multiply by actual price and actual quantity used multiply by standard price, that is price variance formula. Now next will be quantity. ठीक है, हमने कितनी क्वांटिटी यूज करी, सो सेम क्वांटिटी यूज्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, उसको माइनस करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड मल्टीप्लाई बाय अगेन स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, सो यहाँ पे क्वांटिटी यूज्ड फॉर्मूला। After that you have next formula, that is material mixed variances formula. Mixed variances formula, यहाँ पे आपने कितना मटेरियल मिक्स किया है। ठीक है, तो एक्चुअल क्वांटिटी एट इंडिविजुअल स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल क्वांटिटीज एट वेटेड एवरेज ऑफ स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, अभी ये सुनने में आपको एकदम ऐसे लगेगा कि ये क्या है, सिर्फ लिखा हुआ है मैंने पढ़ दिया। तो बच्चों मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे फॉर्मूला में जितनी भी चीजें लिखी हैं वो सब आपको क्वेश्चन में प्रेजेंट होंगी। व्हाट यू हैव टू डू इज put the values in a formula and you will get your answer. ठीक है, material yield variances यहाँ पे है क्वांटिटी एट वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ मटेरियल कॉस्ट माइनस actual output quantity at a standard material cost. Let us see some variances about डायरेक्ट लेबर के वेरिएंसेस देखो। जब वेरिएंसेस का मतलब मैंने आपको बताया, हाँ वेरिएंसेस का मतलब होता है डिफरेंस, बदलाव, चेंजेस। ठीक है, नाउ डायरेक्ट लेबर वेरिएंसेस में डायरेक्ट लेबर रेट और द प्राइस वेरिएंसेस, अगर ये कैलकुलेट करना है तो एक्चुअल आवर्स वर्क। अब लेबर का कैलकुलेशन तो उसके काम करने के हिसाब से आएगा ना बच्चों, कि कितना आवर्स लेबर ने काम किया और उसके बदले लेबर को कितने पैसे मिले। कितना आवर्स लेबर ने काम किया और उसके बदले लेबर को कितने पैसे मिले, यहाँ पे वो कैलकुलेशन आएगा। ठीक है, तो एक्चुअल आवर्स वर्कड मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट minus actual hours work multiplied by standard rate. Then we have labor efficiency, usage और the quantity. ठीक है, अभी एफिशिएंट, नॉन एफिशिएंट, ये मैंने आपको लेबर वाले चैप्टर में पिछले सेमेस्टर में बताया था कि एफिशिएंट लेबर क्या होता है, इनएफिशिएंट लेबर क्या होता है। तो अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एक्चुअल आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। ये वैल्यू से ये फॉर्मूला लगाने के बाद आपके पास डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी, यूसेज और दी क्वांटिटी फॉर्मूला आएगा। आफ्टर दैट यू हैव डायरेक्ट लेबर यील्ड वेरिएंसेस। यील्ड बोले तो आउटपुट वाला कितना दिया, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्सपेक्टेड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड लेबर रेट माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड लेबर रेट। ठीक है, अब ये फॉर्मूलाज आपको थोड़े बड़े बड़े लग रहे हैं स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपको थोड़े बड़े बड़े लग रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये इतना लंबा क्या है, तो
मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं आपको ये फॉर्मूला कट शॉर्ट करके बहुत छोटे छोटे वर्ड्स में देने वाली हूँ, ठीक है। नो डाउट डेफिनेटली आई एम गिविंग सो दैट आपको वो फॉर्मूला याद करने में डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। अभी ये वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखोगे तो एटलीस्ट आपको समझ में आएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। सो प्लीज स्टूडेंट्स गो थ्रू दिस वीडियो 2 times and after that we are solving more questions in our next videos.